नाउ लिसन केयरफुली, क्वेश्चन इज, कहता है इफ अल्फा बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ a tan x plus b secant x is equal to c, then prove that tan alpha plus beta is equal to 2ac upon a square minus c square. सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए? सबसे पहली चीज आनी चाहिए, we are given a tan x plus b secant x equal to c and you have to find the value of tan alpha plus beta. तो अगर मैं ठंडे दिमाग से सोचूं, tan alpha plus beta जो होगा वो किसके बराबर होगा? That must be equal to tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta. So what I'll do, I'll convert this in terms of tan. A tan x is equal to c minus b secant x. A tan x is equal to c minus b secant x. Squaring both sides, a square tan square x, c square plus b square secant square x minus 2bc secant x. Now I have to convert in terms of tan x. किसमें convert करना है? In terms of tan x. So when you open this, there will be secant x left always. हमेशा secant x बचेगा. So it will be difficult when you write it as 1 plus tan square x. So the best way is this. You don't go with this method. What you will do? You will write like this: a tan x plus b secant x is equal to c. हमारे दिमाग में इन जनरल होता है कि हम tan का स्क्वायर कर लें तो क्वाड्रेटिक की tan बन जाएगी, कभी नहीं बनेगी, ये ख्याल रखना। हम लोग क्या करेंगे, हमेशा secant x को यहां पे रखेंगे, c माइनस a tan x रखेंगे, ये ख्याल रखना। जिसमें क्वाड्रेटिक बनानी है वो फंक्शन में आपने लीनियर फंक्शन लेना। नाउ डू स्क्वेयरिंग, b स्क्वायर secant स्क्वायर x c माइनस a tan x का होल स्क्वायर, इट कम आउट टू बी c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर x माइनस 2ac tan x। अब ये बात समझ आई? अब ये tan x में आ गया, यहां पे secant x में आ रहा था और ये 1 plus tan square x अंडर रूट लेना पड़ता। इट्स समवट डिफिकल्ट टू सिंप्लीफाई, बट अब b स्क्वायर secant स्क्वायर x की जगह पे 1 plus tan square x लिखिए। दिस विल बी c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan square x माइनस 2ac tan x। b स्क्वायर tan square x is equal to what? Sir, c square plus a square tan square x minus 2ac tan x. It come out to be quadratic b square tan square x minus a square, b square minus a square tan square x, इसको tan square x को इधर ले आइए, प्लस 2ac tan x इसको इधर ले आइए, प्लस b square minus c square equal to 0. What do you get? Sir, quadratic in tan x, quadratic in tan x. अगर सोचो, अगर कोई चीज मान लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस 2a अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 होता है, अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो इसके रूट्स भी अल्फा 1 और अल्फा 2 होते हैं। अगर सपोज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 होता है तो इसके रूट्स भी x1 और x2 होते हैं। मतलब जैसी शक्ल होती है क्वाड्रेटिक की, उसके रूट्स भी वैसे ही होते हैं। अगर यही कोई इक्वेशन tan में बन जाए तो इसके रूट भी tan x1 और tan x2 ही होंगे, ये क्या रखना। अब उसने दे रखा था कि अल्फा बीटा जो है वो इसके रूट्स है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, मतलब x के रूट्स हैं। अब आपकी क्वाड्रेटिक किसमें है? सर अब क्वाड्रेटिक तो tan में है, तो अल्फा बीटा की जगह पे अब tan अल्फा एंड tan बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, अब इसके रूट्स बन गए। अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स tan अल्फा प्लस tan बीटा माइनस b बाई ए।
That will be minus 2ac upon b square minus a square. Similarly, product of the roots, tan alpha, tan beta. Product of the root tan alpha, tan beta, it must be equal to b square minus c square upon b square minus a square. ये product of the root आ गया. This is sum of the roots. This is product of the root. Now what you will do? अब आप क्या करेंगे? ये sum of roots पता है, ये product of roots पता है. आपको निकालना क्या है? Sir, we have to find tan alpha plus beta. That must be equal to tan alpha plus tan beta. 1 minus tan alpha, tan beta. What is the value of tan alpha plus tan beta? It will be minus 2ac b square minus a square. 1 minus tan alpha tan beta, b square minus c square upon b square minus a square. सर एलसीएम ले लीजिए. minus 2ac upon b square minus a square minus b square plus c square. b square कट गया. माइनस को नीचे ले आओ. 2ac upon c square a square minus c square. 2ac a square minus c square. Hence prove. ये अपने आप ही प्रूव हो जाता है. इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए. मोटी सी चीज समझने वाली क्या है, हमारे दिमाग में गलती क्या होती है, a tan x plus b secant x equal to c है. हम लोग क्या करते हैं, हमेशा tan x इधर रख लेते हैं, secant x ले जाते हैं. बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे secant x बन जाएगा और इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू चेंज दिस. तो ये ख्याल रखना कि ये एक स्टेप कभी भी नहीं होना चाहिए. यू हैव टू टेक व्हाट, यू हैव टू टेक tan x टू अदर साइड, क्योंकि जिसमें क्वाड्रेटिक बनानी है उसी फंक्शन को तो लेके जाओ. खाली secant square x है, secant square x के लिए 1 plus tan square x बन जाएगी. ये क्वाड्रेटिक इन tan x आ जाएगी. आप कहेंगे tan alpha tan beta be the roots of the equation. You will find tan alpha plus tan beta. Sum of the roots is this. Product of the roots is this. So tan alpha plus beta फॉर्मूला आपको आता है, tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta. And while substituting the value, जब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आपको ये रिजल्ट मिल गया. Now question is, कहता alpha beta be the solution of this, then prove that cos alpha plus beta is equal to a square minus b square upon a square plus b square. बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन आ गया. अब मेरे को इसको दिमाग में रखना है कि when cos alpha plus beta will be open, what do you get? सर cos alpha plus beta क्या होता है? cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसके भी निकालने पड़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के भी निकालने पड़ेंगे. मतलब once you have to make a quadratic in cos x, second time you have to make a quadratic in sin x, both. इसका मतलब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, a cos x c minus b sin x, squaring both sides, a square cos square x c square plus b square sin square x minus 2bc sin x. तो कैसा आ गया? Now what I will do, बात तो समझिए. I have to make it in sin x. So it will be a square 1 minus sin square x c square plus b square sin square x minus 2bc sin x. ये a square को ले जाओ, a square sin square x plus b square sin square x, a square plus b square कॉमन निकल जाएगा, ये sin square x आ जाएगा. minus 2bc sin x, इसको a square को इधर ले आओ, plus c square minus a square equal to 0. This is what? Quadratic in sin x. Therefore sin alpha sin beta be roots of equation 1. This implies product of the root. Product of the root क्या होगा? Sir sin alpha sin beta. That is equal to what? C by a. C by a. तो क्या हो जाएगा? C square minus a square upon a square plus b square. Number 2. Now again इक्वेशन दोबारा चलिए. a cos x plus b sin x equal to c. अब cos x में क्वाड्रेटिक बनानी है, cos x को ले जाओ, b sin x c minus a cos x, स्क्वेयरिंग b square sin square x c square plus a square cos square x minus 2ac cos x. Now b square 1 minus cos square x c square a square cos square x minus 2ac cos
It will be what, sir? A square plus B square cos square x, इसको तो ले जाओ, minus 2ac cos x c square minus b square is equal to 0. That is third equation. Again, cos alpha, cos beta be the roots. Cos alpha, cos beta. It must be equal to what? C square minus b square upon a square plus b square. Now you have to find the value of cos alpha plus beta. What do you have to find? You have to find the value of cos alpha plus beta. Sir, what is cos alpha plus beta? Cos alpha plus beta क्या होगा? Sir, it must be cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. I put the value. Cos alpha cos beta is c square minus b square upon a square plus b square. Sin alpha sin beta is c square minus a square upon a square plus b square. This implies a square plus b square. It come out to be c square minus b square minus c square plus a square. Cancel out. It will be a square minus b square upon a square plus b square. मान लीजिए अगर आपको दूसरा cos alpha minus beta निकालना होता तो when I have to find the value of cos alpha minus beta, it come out to be cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. I'll put the value once again. C square minus b square a square plus b square plus c square minus a square upon a square plus b square. This implies a square plus b square is an LCM. It will be c square minus b square plus c square minus a square. We'll add this. C square plus c square 2c square minus a square plus b square upon a square plus b square. So you get the result like this. It come out to be 2c square minus a square plus b square upon a square plus b square. So मुश्किल नहीं है. You put a bracket here. 2c square minus a square plus b square. It depends. You may be asked this. You may be asked this. Now the problem arises. Problem क्या है? अभी तो उसने cos alpha plus beta या cos alpha minus beta पूछ लिया. By chance अगर वो sin alpha plus beta पूछ लेता तो now the problem arises. How to find sin alpha plus beta? सर sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta ये तो किसी के रूट्स ही नहीं होते. तो जब भी कभी sin alpha plus beta निकालना होता है तो ये ख्याल रख लेना. You can find like this 1 minus cos square alpha plus beta under root. You know it very well. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Using this identity, you can find the value of sin alpha plus beta. You have to find the value of sin alpha plus beta. You can use this. अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम कब आती है? जब आपको ये दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि ऐसे sin alpha minus beta निकालो, तो हम कभी सपने में भी नहीं सोचते कि sin alpha minus beta कैसे निकलेगा यार. क्योंकि यहां से मैं स्क्वेयरिंग कंप्लीट करके cos alpha cos beta sin alpha sin beta निकाल सकता हूं. मैं इस तरीके से cos alpha minus beta निकाल सकता हूं. लेकिन sin alpha minus beta सर वो नेक्स्ट स्टेप है. अगर cos alpha minus beta निकल गया उसके बाद आप sin alpha minus beta यूजिंग दिस आइडेंटिटी sin square theta plus cos square theta equal to 1 से निकालोगे. तो you can put a special note on this कि whenever we have to find sin alpha plus beta or sin alpha minus beta, we have to find cos alpha plus beta or cos alpha minus. Now the question is, prove that 1 upon sin of x minus a sin of x minus b, it must be equal to cot x minus a minus cot x minus b. Cot x minus a minus cot x minus b upon sin of a minus b. देखो बेटा ये एक फॉर्मूले होते हैं इन जर्नल प्लस 2 में बहुत काम के हैं. ये एक्चुअल में होता क्या है?
ये दोनों साइन के फॉर्मूले हैं। जब भी साइन होता ना, साइन स्टार्ट फ्रॉम एस, वी कॉल इट एज सेम सेम, वी कॉल इट एज सेम सेम। सेम सेम क्या होता है? अगर दोनों साइन के हों या दोनों कॉस के हों, मेरी बात को सुनना प्लीज, साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस बी, मैंने क्या कहा कि दोनों ही साइन के हैं, ठीक है, दोनों सेम सेम है, दोनों क्या है? सेम सेम है। तो इस चीज को दिमाग में रख के चलिए, अगर दोनों साइन के आएंगे या दोनों कॉस के आएंगे, दोनों साइन के आएंगे या दोनों कॉस के आएंगे, इन दैट केस व्हाट यू विल डू? अब यहां पे मेरे पास दोनों साइन के हैं, यहां पे मेरे पास दोनों साइन के हैं। अगर ये दोनों साइन के हैं तो सेम सेम है, मतलब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, इट विल कम आउट टू बी बी माइनस। मैं क्या करता हूं, 1 अपॉन साइन, आई टेक लेफ्ट हैंड साइड, चलो एक्स माइनस ए लेबल लिख देता हूं, इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। क्या किया मैंने सर, मैंने साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर दिया। किसी कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूं, तो मैंने साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर दिया। अब जरा ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूं, सेम सेम था तो साइन लिया, अगर ये अलग अलग होता, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी होता ना, फिर कुछ और प्रूव करने को आता तो अलग हो जाता ना, डिफरेंट होता, फिर मैं कॉस लेता, 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी। यहां पे मैंने 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लिया, तो इस a माइनस बी की जगह पे मैं सोचता हूं x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने x ऐड कर दिया, x सब्ट्रैक्ट, इसको खोल के देखो, x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, एक्स एक्स कर देगा, a माइनस बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। तो ये a माइनस बी को मैंने x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए लिखता है। अब यूजिंग द फॉर्मूला कौन सा, साइन ए माइनस बी, सर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। नाउ सर साइन एक्स माइनस बी कट गया, घर चले गए, कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, सर कॉट साइन एक्स माइनस कट गया, कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए, कॉट एक्स माइनस ए माइनस साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस में कट गया, कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस बी, कॉट एक्स माइनस बी, it come out to be cot x minus a minus cot x minus b divided by sin a minus b which is equal to RHS। दोबारा देखिए, अगर दोनों साइन के हैं या दोनों कॉस के हैं तो साइन ए माइनस बी से डिवाइड करना है, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं एक्स ऐड और एक्स सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, तो ये साइन कॉस कॉस साइन खुलेगा, साइन कॉस कॉस साइन खुलेगा, एक एक कट जाएगा और एक एक रह जाएगा, वो एक एक रहेगा तो कॉट का रिजल्ट बन जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कॉस लेता कांस्टेंट से, कॉस ए माइनस बी, तो दोनों कॉस के आते हैं, दोनों साइन के आते हैं, एक बार तो दोनों कॉट आ जाते हैं और एक बार दोनों कट जाते हैं, तो फिर ये रिजल्ट नहीं बन पाता। सो बेस्ट वे क्या होता है, वी हैव टू कैंसल आउट वन एंड लेट इट बी वन विद अस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन 12th स्टैंडर्ड व्हेन वी डू इंटीग्रेशन, तो इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट। जब इंटीग्रेशन करना है तो ये उसका बेस्ट पार्ट होता है। ये मैंने आपको आज समझा दिया कि दोनों साइन है या दोनों कॉस है, तो साइन ए माइनस बी से करना है, अगर दोनों अलग अलग होंगे तो उसका रिजल्ट भी अलग होगा। अपॉन कॉस साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, प्रूव दैट 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए cos x minus b is equal to cot x minus a
cos x minus a plus tan x minus b अपॉन cos a minus b अपॉन cos a minus b। तो ये तो अपने आप ही बोल रहा है, ये अपने आप ही बोल रहा है। What to do? You have to see, मैंने पहले ही कहा ये डिफरेंट है, एक साइन है एक कॉस है। जब भी कभी एक साइन और एक कॉस की बात आएगी मतलब ये डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट में क्या करते हैं, कॉस लेते हैं, कॉस ए माइनस बी से डिवाइड करो, कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, कॉस ए माइनस बी से डिवाइड करो, कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करो। ये साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी एज इट इज, क्या किया मैंने इसको, ये एज इट इज लिखा, cos a minus b से डिवाइड किया, cos a minus b से मल्टीप्लाई किया। नाउ दिस विल बी cos a minus b, cos a minus b में क्या किया, x minus b माइनस x minus a। कुछ ऐसा आ गया। अब cos a minus b, cos a minus b क्या होगा, cos a minus b, बात तो समझिए, cos a minus b it will be sir cos a cos b plus sin a sin b, sin of x minus a cos of x minus b। ओके व्हाट यू विल डू, सर इसको तो छेड़ो मत ना, ये तो बेचारा किसी कुछ कहता ही नहीं है। दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, जब दिस बाय दिस है तो cos x minus b cos x minus b कट गया, cos x minus a अपॉन sin x minus a, सर cot x minus a आ गया, ओके, प्लस sin x minus b अपॉन cos x minus b tan x minus b, sin x minus a sin कट गया, इट विल बी tan of x minus b। अपने आप ही रिजल्ट बनेगा, जो राइट हैंड साइड पे दे रखा है वो अपने आप बन जाएगा। सिर्फ एक चीज दिमाग में रखना, जब ये डिफरेंट है, साइन कॉस है, तो cos a minus b से डिवाइड करना है, cos a minus b से मल्टीप्लाई करना है। जब दोनों सेम है, दोनों ही साइन है या दोनों ही कॉस है, whenever you are having both sin both cos, you have to take sin a minus b, sin a minus b से डिवाइड करना है, sin a minus b से मल्टीप्लाई करना है। क्या now we know that पहली चीज sin x जो है it is always bounded in between -1 and 1, very important point, and we had seen the graph also कि जो sin x है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। yes sir 100% श्योर है। बट व्हेन वी टेक cos x, सर cos x जो है वो भी हमेशा, cos x भी हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इट सीम्स टू, ये लगता है ऐसे है कि sin x प्लस cos x अगर मैं ऐड कर दूं तो -1 -1 -2 और 2 के बीच में लाई करेगा, ऐसा लगता है कि ऐड कर रहा हूं तो ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं है प्लीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देन इफ आई वांट टू फाइंड द रेंज ऑफ a sin x plus b cos x, मतलब what is the minimum value and what is the maximum value of a sin x plus b cos x when both the function goes simultaneously। हम कहते हैं सर कैसे, मैं कहता हूं सर देखो a sin x plus b cos x है, अगर तो मैं डायरेक्ट बात करूं तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू जो आपको लर्न करनी है वो है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज दिस। मतलब अगर sin x प्लस cos x की बात आती है तो इसका ऑप्शन क्या है 1, इसका ऑप्शन क्या है 1, तो सर ये √2 और -√2 के बीच में होनी चाहिए थी। लेकिन हम कहते हैं सर ये आई कैसे, हम कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान के चलिए a sin x प्लस b cos x है, a sin x प्लस b cos x है, when you take this a sin x प्लस b cos x, हम क्या करते हैं पुट a इज इक्वल टू r cos अल्फा एंड b इज इक्वल टू r sin अल्फा, हम पुट कर देते हैं।
जब मैंने इसको पुट किया, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, क्या होगा सर, r cos अल्फा sin x plus r sin alpha cos x. When I collected r common, it will be sin x plus alpha. इसका मतलब a sin x plus b cos x will be changed into ar sin x plus alpha. भाई इतनी सी बात में बदल जाता है, इतनी सी बात में बदल जाता है। तो मैंने कहा सर साइन ऑफ x प्लस अल्फा, ये साइन थीटा ही है सर, ये बात तो पक्की है कि ये -1 और 1 के बीच में लाई करता है। इफ आई मल्टीप्लाई बाय r, ये r sin x प्लस अल्फा बन जाएगा। अच्छा, इसको मतलब ये r हो जाएगा और ये -r हो जाएगा। यस, इट इज r एंड इट इज -r। ये r sin x प्लस अल्फा है, ये r और ये -r होगा। ओके, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू r है, मिनिमम वैल्यू -r। तो मेरे को r की वैल्यू निकालनी है। अब मैं r की वैल्यू कैसे निकालूंगा वो देखो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, a square plus b square is equal to what? r cos square alpha plus r square sin square। a square क्या होता है? r square cos square alpha, b square r square sin square alpha। तो a square plus b square, ये r square कॉमन निकाल दो, cos square alpha plus sin square alpha। cos square alpha plus sin square alpha क्या होता है? 1। दिस इंप्लाइज r square क्या हो जाएगा? a square plus b square। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? सर a square plus b square अंडर रूट, ये r है। सो जो r sin x प्लस अल्फा था वो कहां से कहां तक आया था? -r से +r के बीच में आया था। अच्छा, r sin x प्लस अल्फा किसके बराबर था? सर वो a sin x प्लस b cos x की वैल्यू थी। अच्छा, r की वैल्यू क्या थी? सर वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट था, और ये -a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट था। ओके, अगर मेरे से कोई ये कहे कि व्हाट इज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x, मैं कहूंगा ठहर जा, कोई मुश्किल नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग सर। इट विल बी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। 9 plus 16 25, it will be -5 3 sin x plus 4 cos x less than equal to +5। मतलब 3 sin x plus 4 cos x always lie between -5 to +5। Is it clear to everybody? चेंज होके आ जाए, डायरेक्टली नहीं पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि फाइंड द मिनिमम और and maximum value of a sin x plus b cos x plus c, a sin x plus b cos x plus c। हम कहेंगे सर ये भी कोई मुश्किल नहीं है, हमने इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, कोई मुश्किल नहीं। कहता कैसे? मैं कहा सर देख लो, a sin x plus b cos x always lie between -√a square plus b square to √a square plus b square। अगर मैं c ऐड कर दूं, a sin x plus b cos x plus c, सारी तरफ c ऐड कर रहा हूं तो -a square plus b square plus c हो जाएगा, और यहां पे भी c plus a square plus b square। सर कैसे? मैं कहता हूं सपोज, कहता फाइंड द रेंज of the function, let it be √2 sin x plus cos x minus 3। कहता find the range of √2 sin x plus cos x minus 3। so what I will do here, what I'll do, मेरे को प्रूफ नहीं करना इसका, I'll take the solution directly। we know that क्या पता है आपको? a sin x plus b cos x, sir always lie between a square plus b square to minus a square plus b square। this will be what?
Sir, a is root 2. This is 1. This is 2 plus 1. Root 2 का square 2, 1 का square 1. Less than equal to what? Root 2 sin x plus cos x. Less than equal to what? Sir, minus root 3. Root 3, sorry, not minus root 3. It come out to be minus root 3 plus root 3. अगर यही -3 सब जगह कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? √3 minus 3 and -3 minus √3. So what is the minimum value? Minimum value is this. What is the maximum value? Maximum value is this. So this function always lie between this to this. Generally जब भी कभी हम कोई कंपटीशन एज में क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना, तो हम पहले रेंज देख लेते हैं कि जो हमारा आंसर है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो हम लोग आंसर में से जो ऑप्शंस होती हैं उसको चेक करके अपना रिजल्ट बता देते हैं कि हाँ जी सर, कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है वो पक्का इस तरीके से हुआ होगा। इज इट क्लियर? नाउ कई बार क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ जाता है, कहता फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है 3 sin x प्लस 2 cos x माइनस 5/4 ले लो। चलो, कहता फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू या फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे? सर 3 sin x 2 cos a minus b, cos a minus b, सर cos x cos pi/4 प्लस sin x sin pi/4। ओके, इसका मतलब सर ये 3 sin x प्लस 2 cos x cos pi/4 is 1/√2, sin x sin pi/4 is again 1/√2. So definitely it come out to be 3 sin x. √2 कॉमन निकाल के बाहर ले जाइए, इट कम आउट टू बी √2 cos x प्लस √2 sin x। ओके, इसका मतलब ये 3 प्लस √2 sin x प्लस √2 cos x हो गया। पहले मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके a sin x प्लस b cos x की शक्ल बनाई। जब मैं इसको a sin x प्लस b cos x की शक्ल दूंगा तो आई नो, वी नो दैट, क्या मालूम है आपको बेटा, a sin x प्लस b cos x always lie between √a² plus b² under root minus a² plus b². This implies minus a is 3 plus √2 का whole square plus √2 का whole square less than equal to 3 plus √2 sin x plus √2 cos x lie between, this is 3 plus √2 का whole square प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 2 प्लस 6√2 प्लस 2। ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस √2 sin x प्लस √2 cos x लेस देन इक्वल टू व्हाट? 9 प्लस 2 प्लस 6√2 प्लस 2। दिस विल बी व्हाट? 9 to 11 to 13, 13 plus 6√2, 3 plus √2 sin x plus √2 cos x less than equal to 13 plus 6√2 under root. So in this way I can find the value of this. अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता और चेंज होता and he may ask you find the range of 3 sin x plus 2 cos x minus pi/4 plus 5 प्लस 5 देता तो भी कुछ नहीं सर, यहां पे लाके इसको प्लस 5 कर देते, यहां पे प्लस 5, यहां पे प्लस 5, यहां पे प्लस 5, मतलब ये प्लस 5 और प्लस 5 आ जाता, मतलब ये 5 माइनस √2 आ जाता अगर 5 साथ में देता तो। देखने में डरावना लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं, देखने में डरावना लगता है,
a sin x प्लस b cos x। बस एक चीज दिमाग में रखनी है कि जब भी कभी a sin x प्लस b cos x का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हो, इट विल बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नेगेटिव साइन, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पॉजिटिव साइन। ये छोटी सी चीज दिमाग में रखना। उसके अलावा जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, जैसा मर्जी क्वेश्चन पूछा जाए, आप एक्सपेंड करके उसको आराम से उसकी शक्ल a sin x प्लस b cos x की फॉर्म में बना के बड़े प्यार से आप बना पाओगे। समटाइम्स ही में आस्क यू, कई बार वो आपसे ये पूछता है फाइंड द वैल्यू, या रेंज ना लेके कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहां पे लिख देता है a, यहां पे लिख देता है b, कहता फाइंड a एंड b। तब भी तो वही बात है, a इज व्हाट द मिनिमम वैल्यू, ये a बन जाएगा और ये b बन जाएगा। दैट्स इट। क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है, बट द थिंग इज एग्जैक्टली सेम। उसमें कोई फर्क नहीं है, वो जिस तरीके से मर्जी पूछ ले। पूछ क्या रहा है? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin x प्लस b cos x प्लस c। ठीक है जी, थैंक यू।